It's a big Hello. favor for me to be with you today. ये बहुत मेरे लिए अच्छी बात है कि आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। I've been the contact person from Uniting Church in Sweden with the HCC for since 2016. 2016 से ही करते हैं यूनाइटेड चर्च स्वीडन और एचसीसी, ये जो हिंदुस्तानी कॉन्वेंट चर्च है हिंदुस्तान में, तो ये दोनों का संपर्क, ये मध्यस्थी का काम करते हैं। And I think I've been coming here once or twice every year. और मैं यहाँ साल में 1-2 बार आया करूँगा और आता हूँ। But I've never been here. लेकिन मैं इससे पहले भारत आया हूँ, यहाँ कभी नहीं आ पाया। And I've told him, the moderator, several times, I would like to go to visit Pimpri Church. और मैंने मॉडरेटर साहब से बहुत से बार कहा है कि मुझे पिंपरी के चर्च जाकर देखना है। So I'm from Sweden, तो मैं स्वीडन से आया हूँ। the country of the Swedish Covenant Mission. जो स्वीडिश हमारा कॉन्वेंट मिशन है, वहां से मैं आया हूँ। And SKF. एंड SKF. एसकोएफ, व्हाट How इज do you दैट call that? स्टैंड्स फॉर? SKF. एसकेएफ। The big factory that's around here. Raymond works there. That water bottle is from Yeah. SKF. Svenskan Kullager Fabrikants, isn't it? Yes, I guess there are used to SKF, be we at know, least yes. a lot of Swedish factory in this Yes, area. yes, Sandvik, SKF, Alpha Level, we have. It's really good to be with you this morning. अब मैं बहुत खुश हूँ आज की सुबह आप सबके बीच में रहकर। I've been around in India. I've been to Kashmir and to around in Maharashtra for the last 1.5 week. मैं इन दिनों में कश्मीर घूमकर आया हूँ और महाराष्ट्र में बहुत से स्थान देख चुका हूँ। It has been a busy program, but it's been good. बहुत बिजी रहा हूँ इन दिनों में मैं। When we listen to Jesus and read about Jesus in the Bible, जब हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं या उनके बारे में पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, there are some big preaching. या उसके ऊपर बहुत से बड़े संदेश सुनते हैं। When he speak to 3,000 men, जब वो बड़े 3000 की तादाद में लोगों से बात करते हैं, and women and children, एंड and women and children. और स्त्रियों और बच्चों से बात करते हैं। But really, when we listen to Jesus, time after time, he is in this close talks with people. और हम जब सुनते हैं कि यीशु मसीह जब लोगों से बात करते थे, तो वो ही बहुत ही नजदीकी से बात करते थे। And often he asks questions. और बहुत से बार वो उनसे प्रश्न पूछते थे। So when someone asks him, he give a question back. और अगर कोई उनसे प्रश्न पूछता, तो वो उसका सवाल देने के पहले उससे प्रश्न ही पूछते। All the way from when he was 12 years in the temple, he does like that. जब वो छोटे थे, 12 साल की उम्र से। So I thought I should also ask you some questions. इसलिए मैंने सोचा मैं भी आपसे कुछ प्रश्न ही पूछूंगा। And I would like to ask you first of all, और मैं आपसे सर्वप्रथम पूछना चाहूंगा, who was the person in the Bible that Jesus admitted that he was Messiah to? The first person that he did. पवित्र शास्त्र में ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति है जिसने पहचाना कि यीशु मसीह ही मसीहा है? पीटर। Peter. Wrong. रॉन्ग, आपका जवाब में It's the same. शमरोनी स्त्री, Yes, the Samaritan woman. सामरी स्त्री। We also say that she was the first missionary. और हम ये भी कह सकते हैं कि वो पहली मिशनरी थी। Church history, we used to say the Samaritan woman was the first missionary. और हम कह सकते हैं कि वो सामरी स्त्री ही पहली मिशनरी थी। And she was the first one that Jesus told, I am Messiah. Clearly. और उसको ही पहले बार यीशु मसीह ने यह दर्शाया कि मैं ही मसीहा हूँ। And you who were here early, you have heard the scripture been reading from John 4. और पहले ही सुबह के समय में हमारी बहन भाकरी आंटी ने यह अध्याय पढ़ा है। Of course, it's the Women's Day today.
और or आज yesterday. हम जानते हैं आज महिला दिन है, बहुत अच्छा दिन है। This is a interesting story. यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है। Jesus is out with his disciples and he's coming from Galilee and he's going to you, down to Jerusalem. ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि यीशु मसीह गलील से यरूशलेम की ओर जा रहे हैं अपने चेलों के साथ, And in between there is Samaria. और रास्ते में उनको समरिया गांव मिलता है। But Jews didn't like Samaria. और जो यहूदी लोग थे उनको सामरी लोग इतने पसंद नहीं थे। Normally they went around so they didn't have to go through Samaria. और लोग जब अपनी यात्रा करते थे तो समरिया से गुजरते नहीं थे, उसको चक्कर मारकर निकलते थे। But Jesus is now passing through Samaria. लेकिन यीशु मसीह ने वैसे नहीं किया, वो समरिया से गुजरने लगे, जाने लगे। And by noontime they reach one well और दोपहर की समय में वह एक कुएं के निकट पहुंचे, outside the city and he sits down there. और शहर के बाहर यह कुआं था और यीशु वहां बैठ गए। The disciples run into the city for buying and getting some food. और जो उनके चेले थे वह शहर की ओर हो लिए ताकि वह कुछ खाने के पदार्थ खरीद सके। You know, there's other story in the Bible where the parable about the Good Samaritan. और हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में अच्छा सामरी की भी एक कहानी है। You know, the person that is beaten, and then first there comes a priest and so on, and the last one is a Samaritan. और हम ये कहानी सुनते हैं कि किस तरह से किसी भी ने उस घायल आदमी की मदद नहीं की, एक ही था जो सामरी था, वो सामने आया मदद करने। In my country, we even call the people that works to take care for people some Samaritans. ओके, यहाँ हम स्वीडन में अगर कोई मदद करता है एक दूसरे की, जो हमेशा लोगों की मदद के लिए दौड़ता है, उस आदमी को हम सामरी के नाम से बुलाते हैं। But when Jesus told this story, he shocked the Jews. Can you repeat? When Jesus told this story, he shocked the Jews when he said it was the Samaritan that was the good guy. हाँ, जब यीशु मसीह ने यह कहानी सुनाई, ओके, यह पैराबल सुनाया, तो जो यहूदी थे वो हक्के बक्के रह गए, अरे एक सामरी ने मदद की। It was really upside down for them. ये सब कुछ उनके लिए उलट पुलट था, ये सिद्धांत। Samaritan, they were no real Jews. They were no real believers. हाँ, उनके लिए समारिटन यहूदी नहीं थे, ओके, वो विश्वासी भी नहीं थे। तो उनकी कहानी में, इनके किस्से में एक सामरी कैसे आ गया यीशु के। They didn't pray on the right place. उनका कहना था कि वो सही जगह पर प्रार्थना नहीं करते, They believed little bit strange things. और वो उनका विश्वास कुछ अलग ही था, They were not to be trusted. और वो विश्वास योग्य नहीं थे, ऐसा माना जाता था। And like I said, normally you went around Samaria, so you didn't need to even go there. ओके, तो मैंने जैसे कि कहा, लोग उस गांव से कभी नहीं गुजरते थे। अगर वहां से रास्ता हो तो चक्कर मार के बाजू से जाते थे, लेकिन उस गांव से कभी नहीं गुजरते। But now in the story, Jesus is there sitting in the middle of the day. और यह कहानी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस गांव में बैठे हैं, दिन के दोपहरी में कुएं के पास। There are quite some women here today. आज बहुत सारी यहाँ स्त्रियां हैं, And some mature women. और सब समझदार औरतें हैं। Is it any one of you that had fetched water from a well? आप में से किसी ने कभी कुएं से पानी भरा है? हाथ ऊपर उठाए। Good. बहुत अच्छी बात है। So when did you go to fetch the water during the day? जब हम कुएं से पानी लेने जाते हैं, सुबह या शाम, मॉर्निंग और इवनिंग। Morning or evening? Yes. This is a strange story. और ये बहुत अलग कहानी है। आपने अभी बताया कि सुबह और शाम हम पानी लेने के जा रहे हैं, यहाँ दोपहर है। What do the Samaritan woman do? और ये सामरी स्त्री क्या कर रही है? She comes by noon. ये दिन की दोपहरी में आती है। Why do you go there in the noon when it's hot? और आप दिन के दोपहरी में पानी भरने कभी गई है जब इतनी धूप होगी? And you cannot chat around with other women. और You cannot have a good chat with other women. ओह और आप गप्पे नहीं
मार सकते, यू कैन नॉट गॉसिप, आप बातचीत नहीं कर सकते, दूसरी औरतें नहीं होंगी। Because the wells, isn't that? They used to be the place where you chatted with the other women, where you came out of your house and you had a chance to hear some rumors and some discussions, what's going on. हाँ, और हम ये जानते हैं कि कुआं वैसी जगह थी जहां स्त्रियां एक दूसरे से मिलती थी और बहुत सारी गप्पे शप्पे लड़ाती थी। Of course, she can always slept too long and were very thirsty, so she went middle of the day. हाँ, ऐसा हो सकता है कि वह आराम से दिन में उठी है, देर से उठी, उसकी आँख खुली है और आराम से पानी लेने के लिए आई, तभी जब उसको प्यास लगी। But I think there is another point why she came that time of the day. मुझे लगता है एक और बात थी कि कारण था कि किस वजह से वह दोपहर के समय पानी लेने आई। She didn't want to chat with the women उसको और स्त्रियों से गपशप नहीं लड़ानी थी, because they were chatting about her. क्योंकि वो उसके बारे में पीठ पीछे उसके बारे में गपशप लड़ाते थे। She was not proud about herself. हाँ, और वह अपने बारे में नहीं बता सकती थी। So she go in the middle of the day when no other one is around. सो वो इसलिए उस समय जाती थी कि उस समय कोई और स्त्रियां नहीं हो और ना ही उसके बारे में लोगों को बोलते हुए वह सुने। And there she meet this Jewish man. और वहां यह यहूदी मनुष्य से मिलती है That start to speak to her. और वह उससे बात करने लगता है। No, no, no. Jewish don't talk to Samaritan. Man doesn't talk to women like that. और यह मुमकिन नहीं था क्योंकि यहूदी लोग कभी सामरी लोगों से बात नहीं करते थे, पुरुष कभी स्त्री से बातचीत नहीं करते थे। And then he even said, tell her, please, could you give me some water? और बात तो दूर की बात है, यह उससे कहते हैं क्या आप मुझे पानी पिलाएंगी? That is also something that you don't do. और यह भी नामुमकिन था, ऐसा रिवाज था ही नहीं। You don't want to have water from a Samaritan. और ये जो यहूदी थे कभी भी सामरी लोगों के हाथ से पानी नहीं पिया करते थे। I think you know a little bit about this in this country when you have different groups in the society. हमको मालूम है कि हमारे समाज में भी एक समय था, अभी तो नहीं है, कि समाज में बहुत सारे स्तर होते थे, अभी नहीं है To ऐसा। get water from the wrong person make you unclean somehow. और सभी को यह हक नहीं था कि वह कुएं से, एक ही कुएं से पानी भर सके। And the woman tells him, और वह स्त्री उससे कहती है, why do you ask me? और वो स्त्री उससे कहती है कि आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? And then Jesus gives a strange answer. और यीशु मसीह उसको एक उत्तर देते हैं, If you knew who you talk to now, you would ask him to give you living water. और अगर तुम, वो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि अगर तुम जानती तो कि तुमसे किससे वार्तालाप कर रही हो, किससे बातचीत कर रही हो, तो तुम मुझसे जीवन का जल मांगती। A water that if you drink that, you would never be thirsty again. और तुम मुझसे ऐसा पानी मांगती, ऐसा जल मांगती जिसको पीकर तुम्हें कभी भी जीवन भर प्यास नहीं लगेगी। Now we know that this story is about Jesus. और हम जानते हैं यह कहानी यीशु के बारे में है। But there outside the city by the well, when the woman meets Jesus, she has no idea about who he is. और जब यह स्त्री शहर के बाहर अपने गांव में, सामरी गांव में है, उसे यीशु के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, वो नहीं जानती। He is just a strange Jewish person that talked to her. उसके लिए वह आम यहूदी आदमी है जो अनजान है और उससे वह बातचीत कर रही है। And then she said, sir, give me some water so I don't need to go here every day. और वह कहती है, अरे वाह, तो मुझे दे दीजिए ऐसा जल, फिर मुझे यहाँ वहां पानी की खोज नहीं करनी पड़ेगी। She didn't say, oh, maybe you can make a pipe to my home so I can have a... उसने ऐसा नहीं कहा कि हाँ आप एक नलका लगा दीजिए, एक पाइप लगा दीजिए यहाँ से कुएं से मेरे घर तक, तो मैं जिंदगी भर वहीं से पानी भर सकूं। But she understood it like that if he can give water, I don't need to go here every day. हाँ, उसका कहना था कि अगर वैसा जल है आपके पास तो आप मुझे दे दीजिए, तो यहाँ रोज आने की जरूरत नहीं। And I think for her, going to fetch the water was not just a heavy duty. It was a heavy thing because she didn't like to be around the people.
और ये इसलिए था कि उसके लिए पानी भरना यह संकट का काम नहीं था कि वजन उठाना पड़ेगा और इतने बड़े-बड़े बर्तन उठाने पड़ेंगे, वो संकट नहीं था। उसके लिए लोगों से दूर रहना, उसको किसी के साथ मेल-मिलाप करना नहीं था। And as I said in the beginning, Jesus asked questions. और जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में कि यीशु उससे प्रश्न पूछते हैं। And now, when she says this to him, give him this water, he gives a very strange question to her. और जब वह कहती कि हाँ ऐसा पानी है आपके पास तो मुझे दे दीजिए, लेकिन यीशु उससे एक प्रश्न पूछते हैं। Go and pick up your husband and come here. उससे कहते हैं कि जाओ और अपने पुरुष को, अपने पति को लेकर आओ। What answer is that? और ऐसा कैसा प्रश्न है? And she says, oh, but I don't have a husband, she और says. वह कहते अरे यह तो बहुत मुश्किल है कि मेरे पास पति नहीं है। And he says, you're right. और यीशु यीशु कहते हैं तुमने सही जवाब दिया। The husband that you have now is not your husband. And before you had 5 other husbands. और यीशु उससे Amen. कहते हैं जिस पुरुष के साथ तुम अभी रहती हो वह तुम्हारे पति नहीं है और मैं जानता हूं तुम्हारे 5 पति थे। Jesus offered her first living water. पहले यीशु ने उसे जीवन जल का न्योता दिया। And why does he start to talk about the husbands now? और अचानक वो पति के बारे में विषय क्यों बदल देते हैं? जल से लेकर पति के बारे में इस विषय पर क्यों आते हैं? I'm not totally sure, but I think one reason is that he knows what is going on in this woman. यह इसलिए है क्योंकि यीशु जानते थे कि ये महिला के मन में क्या बोझ है या किस बात से यह परेशान है। And he knows if she should be able to receive the living water, the eternal life, she needs to also confess the things that she has been part of. और यीशु मसीह का यह सोच था कि अगर ये जीवन का जल ग्रहण करना चाहती है तो इसके पहले उसे पश्चाताप भी करना जरूरी है, उसे सच्चाई बताना जरूरी है। And be free from that guilt and और shame she feels. और उसके मन पे जो बोझ था, जो बंधन से वो जकड़ी हुई थी, उससे वह छुड़ाई जाए, यह यीशु चाहते थे। As long as she feels so shamed that she cannot go and fetch the water, and when she feels the guilt, she cannot receive the living water. और उसके मन में जो बोझ था, उसे जो शर्म थी, उसको जो लगता था कि मैं लोगों के बीच में नहीं आ सकती, मुंह नहीं दिखा सकती, इस बोझ से वो मुक्त हो जाए और मुक्त होने के बाद ही उसे जीवन जल प्राप्त हो। Then they start a discussion about the prophets and this place, what the Samaritan think and what the Jewish think. और फिर वह वार्तालाप शुरू करते हैं भविष्यद्वक्ता के बारे में, सामरिय लोगों के बारे में, यहूदी लोगों के बारे में। And then they end up with she saying, I know that Messiah is coming. When he comes, he will explain everything to us. और वो कहती है मैं जानती हूँ मसीह आने वाला है और वो जब आएगा तो सभी राज हम पर उंडेल देगा, खुलासा करेगा सभी बातों का। Then Jesus said this, तब यीशु उससे कहते हैं I, the one speak to you. I am he. और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो तुमसे बातें कर रहा हूँ मैं ही वही हूँ। Here, according to the Bible, what we know, this is the first time someone here that he admit he is the Messiah. और जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो यह पहला मौका है जब हम यह पहचानते हैं कि यह हमें पता चलता है या वहाँ के समय के लोगों को पता चलता है कि यीशु ही वह मसीहा है। When that happened, the disciples show up. और जब यह पता चला यीशु चेले वहाँ प्रकट हुए। A little bit confused, but they don't say so much there. और जब चेले वहाँ आए वो थोड़े भौचक के थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। But she put down her yard. She should bring the water to her house. और वह कहती है कि वह पानी अपने घर लेकर जाना चाहती है। But she just lets it stand there. और वहाँ वहीं खड़ी रहती है। And then she go to the city. और वह शहर चली जाती है। And when she come to the city, और वो जब शहर में आती है, she says, come and see. और वह कहती आओ मेरे साथ और देखो। A man who told me everything.
और आओ और मेरे साथ देखो वह मनुष्य जिसने मुझे सब कुछ बताया है। Or actually, see a man who told me everything I ever did. और वह उस मनुष्य ने मुझे वह सब कुछ बताया जो मैंने अपने भूतकाल में किया है। Could he be Messiah? क्या वह मसीहा हो सकता है? So she invites the people in the town to come and see. वह न्योता देती है, निमंत्रण देती है शहर के लोगों को कि आओ मिलो, मसीहा से मिलो। And then she confessed to them, kind of. He told me everything I did. और वह लोगों को बताती है कि अरे उसने तो मुझे सब अपने भूतकाल के बारे में मेरा जो इतिहास है वो सब कुछ मुझे बताया। We have a woman that go in the middle of the day because she doesn't want to see anyone else. और हम जानते हैं कि हम एक स्त्री के बारे में सुन रहे हैं जो दिन के दोपहरी में निकलती है पानी भरने के लिए ताकि वह किसी के संपर्क में ना आए। Suddenly she go into the city and say, "Come and see. I met someone that know everything about me." और वह औरत जो किसी को मुंह दिखाना नहीं चाहती, किसका सामना नहीं करना चाहती, अचानक इतना खुला महसूस करती है कि दौड़े दौड़े शहर में जाती है वही स्त्री और बोलती आओ मेरे साथ आओ और देखो मसीही को। What has happened with this woman? अभी अचानक इस स्त्री को क्या हो गया? Uniting Church in Sweden जो हमारा चर्च है स्वीडन में, यूनाइटेड चर्च ऑफ स्वीडन, has a vision और उनका एक ध्येय है to be a church for everyday life. और जो हमारा ध्येय है, हम ऐसी कलीसिया बनना चाहते हैं कि जो रोज के रोज जीवन देने वाला हो, Where the meeting with Jesus transform me, you and the world. और रोजमर्रा के जीवन में यीशु की पहचान हो और उससे हमारा परिवर्तन हो, मेरा और आपका भी। We think the key is when a person meets Jesus, something happens. और हमारा यह सोचना है कि यह एक चाबी है, यह एक सीक्रेट है कि अगर जब आप यीशु मसीह से मिलते हैं, आपका बदलाव, आप में परिवर्तन आता है। A transformation, a आप change can take place. आप में एक परिवर्तन आ सकता है, आप में एक बदलाव आ सकता है। And I think that's what happened with this lady. और मुझे लगता है यही इस स्त्री के साथ हुआ है। She met Jesus, वह यीशु से मिली a Jewish man she didn't know anything about. और वो नहीं जानती थी कि वो मसीहा है। उसके नजरिए से यह कोई यहूदी आदमी है जिसे वह नहीं जानती। That exposed her failure. और उसने उसके जीवन की नाकामी के बारे में बताया। Having had 5 men यह नाकामी के उसके जीवन में 5 पुरुष आ चुके हैं। and not living with not any one of them. लेकिन फिर भी वह किसी एक के साथ अब तक नहीं रहती। But somehow she must have met an acceptance, a love in that situation that changed her. लेकिन ये 5 पुरुष से जो उसे प्रेम नहीं मिला, जब कबूली नहीं मिली, वह उसे इस थोड़े क्षणों में 2 छोटी सी बातचीत में यीशु मसीह से मिली है। Because going from hiding from the other people, she now go to the people and she speak to them. और अब जो लोगों से वो छिपा करती थी, अब उसमें वह ये आ गया है, चेतना आ गई है कि वही लोगों के बीच में जाकर वो बात कर रही है मसीहा के बारे में। And she doesn't even seem to care about covering up the failure of her. और अब उसे उस बात की शर्म नहीं, वो कुछ छुपाना नहीं चाहती कि उसके भूतकाल में क्या हुआ था, उसका क्या इतिहास है। वो बड़ी दुरुत्साह से आकर लोगों से कहती है कि आओ मेरे साथ मसीहा को देखो। This is a strange story. यह बहुत ही अद्भुत कहानी है। By the way, there are a lot of people from the city say going out to meet Jesus. और ऐसे बहुत से उस समय शहर में लोग थे जो यीशु मसीह से मिलने जाया करते थे, जाते थे। And it says later on that there were many start to believe in Jesus. और उसके बाद लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया। So there we have the first missionary.
और वहाँ हम इस तरह से देखते हैं कि एक पहली स्त्री है जो गांव से बाहर निकलकर शहर में लोगों को मसीहा के बारे में बताती है और यह इतिहास की पहली मिशनरी हुई। I don't know if we could call her here in India the first Bible woman. हाँ, आप कह सकते हैं कि ये पहली स्त्री होगी पवित्र शास्त्र में जो प्रचारक थी। But why did Jesus choose a person like her to be the ones that we think about the first missionary? क्या कारण था कि यीशु मसीह ने साधारण से भी नीचे जिसे लोग समाज समझता था, ऐसी स्त्री को दुनिया की पहली प्रचारक के रूप में यीशु मसीह ने चुना। Why did he choose a person like her to be the first one that he admitted that he is Messiah? और यीशु मसीह ने यही स्त्री को क्यों चुना कि वह इतिहास की पवित्र शास्त्र की पहली प्रचारक का ओहदा या उसे वह वरदान मिले, क्यों उसका चुनाव किया गया? It wasn't a big status to be a woman that time. और यह कुछ ओहदे की बात नहीं थी, स्त्रियों को इतनी इज्जत नहीं दी जाती थी उस समय समाज में। So you think if he should tell everyone, why didn't he go to the king and say, I'm Messiah? अगर उन्हें सभी को बताना भी था तो उस उनके जो मसीहा होने का स्रोत है इस वार्ता ये न्यूज़ का, ओके, इस सुसमाचार की बात राजा को जाकर बोलते यीशु। एक सामरी स्त्री को क्यों जाकर बताया कि मैं मसीहा हूँ, मैं ही वही मसीहा हूँ? But he chose a woman, हाँ, और वह भी एक औरत को चुना and he chose a Samaritan. और औरत में से भी सामरी स्त्री को चुना। A Samaritan that were not thought of being good religious people. और वो भी जिनको लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते थे, उनको समझते थे कि वह धार्मिक लोग नहीं हैं। That didn't pray or worship in the right way. और उनका कहना था, यहूदी लोगों का कहना था कि ये सही तरीके से प्रार्थना या आराधना नहीं करते। Had a little bit strange theology. और उनका जो डॉक्ट्रिन है, उनका जो सोच है, उनकी जो भावना है, कल्पना है धर्म के बारे में, वह सभी विभिन्न और अलग है। Were outsider, और उनको बाहर के लोग समझा जाता था। foreigner. हाँ, उनको विदेशी समझा जाता था। That person Jesus chose. और यीशु मसीह ने ऐसे शख्स को, ऐसी व्यक्ति को, ऐसी शख्सियत को चुना। A woman and a foreigner that is not really having the right faith. और ऐसी स्त्री को, एक तो ऐसा व्यक्ति जो स्त्री है और जो बाहरी देश की है, ओके, जो परदेसी है, विदेशी है। And if that wouldn't be enough to try to shock everyone, he chose a person that has had 5 men. और ऐसे भी नहीं कि लोग, इतना ही बस नहीं था कि लोगों को अचरज में ला लेना। ऐसी स्त्री जो पहले अपने भूतकाल में 5 पुरुषों के साथ रह चुकी थी। That was not something you bragged about among the Jewish people. ऐसा ये कोई ओहदा नहीं था, उसकी इतनी उपलब्धियां नहीं थी कि जिसके बारे में वो बड़ा चढ़ाकर लोगों को समाज में कहें कि भाई मेरे तो 5 पति थे। And I think even in India, you don't brag about such यहाँ a भी thing. आप भारत में जानते हैं, इस बात को कोई बढ़ावा देगा नहीं है, ऐसी बात को। So he chooses very special person, but not in the special way we think. इसका मतलब है यीशु का नजरिया अपने लोगों की तरफ देखने का अलग था। वो लोग नहीं जो हमारे समाज के नजर में मुख्य है, ऐसे लोग जो परमेश्वर की नजर में मुख्य हैं। But I think he wants to make a point for us and for everyone else. मुझे लगता है इस किस्से के द्वारा, इस वाक्य के द्वारा यीशु मसीह हमारा ध्यान एक बात पर लेकर जाना चाहते हैं। He and the gospel is for everyone. वो बताना चाहते हैं कि यीशु और उनका सुसमाचार हर एक के लिए है। For men and women, पुरुष और स्त्री, for people from different nations, for different faiths. और अलग अलग विश्वास के लोग, अलग अलग देशों के लोगों के लिए। For the ones that look successful. ऐसे लोग जो दुनिया की नजर में बहुत ही यशस्वी है। For the ones that are failures. और ऐसे भी लोग जो अपने जीवन में नकारात्मक है, फेलियर्स है, हारे हुए हैं। For the ones that is so ashamed that they don't want to see anyone else. और ऐसे भी लोग जो शर्मनाक जीवन जी रहे हैं और किसी को मुंह दिखाना नहीं चाहते, किसी का सामना नहीं करना चाहते। That are called by others as sinners or idolaters.
और जो दूसरों की नजर में पापी कहलाए जाते हैं। Jesus showed that not only his living water is for that kind of person, और यीशु मसीह इस वाक्य से हमें बताना चाहते हैं कि जीवन का जल सभी के लिए है, ऐसे लोगों के लिए भी है। the salvation, the eternal life, उद्धार और सार्वकालिक जीवन। but he can make them to become missionaries. और वह उनको भी चुन सकता है कि वह यीशु मसीह का प्रचार जाकर करें। This is a very good story in many ways, but shocking story. और यह बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही पहलुओं से अगर हम देखें, और बहुत अचरज में लाने वाली कहानी है। It was the Women's Day yesterday, हाँ, कल हमने महिला दिवस मनाया है। and this day we have seen all the women up here. और हम देख रहे हैं कि देखा था कि आज आराधना के लिए सभी यहाँ स्त्रियां खड़ी थी। And I feel so honored to be able to stand up here because और actually it should be a woman. और मेरे लिए यह बहुत गर्व की बात है कि मैंने यह वाकया इस कलीसिया में देखा आज। I'm sorry you had to stand with a man today also. मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज के दिन भी मैं पुरुष यहाँ परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ और आपको उसका रूपांतर करना पड़ रहा है। In India, I think one of the most important factors in the modern mission of the success of the gospel were when they started to use the Bible women. हाँ, मुझे लगता है यीशु मसीह में भारत में यीशु मसीह के नाम का प्रचार तभी ज्यादा यशस्वी हुआ जब भारत में स्त्रियों का योगदान हम देखते हैं, उनका उपयोग किया गया कि ताकि वो प्रचार करें। You understand this much better than me. आप लोग ये ज्यादा महसूस कर सकती हो कि जगह हर एक स्त्री यह काम करती है, परमेश्वर का प्रचार करना। But I understand that almost 200 years ago, 150, 200 years ago, when they started with this was the only way to be able to come with the gospel into the house. और मैं जानता था कि यह तो 200 साल पहले की बात है, कुछ 2000 साल पहले, कि यही एक तरीका था कि सुसमाचार घरों तक पहुंचे। So it was a very good way to reach with the gospel into the houses, in the families, to the communities here in India. और मैं देख सोचता हूँ कि स्त्रियों का इस्तेमाल करना, उनको चुनना और उनका उपयोग करना परमेश्वर के प्रचार के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह बहुत अच्छा स्रोत है लोगों के घरों घरों तक परमेश्वर का प्रचार पहुंचाने के लिए। And I also think there are some other interesting things, which I think, I'm not sure about this, but let you test these thoughts. और मैं जानता हूं कि आप स्वयं जानते होंगे कि और भी बहुत दिलचस्प बातें होती है जो स्त्रियां कर पाती है जब वह प्रचार करती हैं। I think the way the Bible women started to share the gospel और वह जो उनका तरीका जो होता है परमेश्वर के वचन का प्रसार करने का, वो बहुत ही अलग होता है। was a little bit of this open invitation. Come, see, maybe he is Messiah. यही हम देखते हैं ना, उनका तरीका बहुत अलग था। वो कितनी खुश थी, उन्होंने कहा कि आओ देखो, मैं जिससे मिली हूँ शायद वही मसीहा है। And not, you are wrong, you have the wrong faith, and you a bad person. उसने ऐसा नहीं कहा कि तुम मत आओ, तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम्हारा विश्वास अलग है। नहीं, उसने सभी को कहा। Then I think many had closed up, and the gospel wouldn't have had that success or whatever. अगर यह नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि सुसमाचार का इतना प्रभाव पड़ पाता कि उसने खुले में जाकर सभी को न्योता दिया। By the way, I think that is very important today too. आजकल के जमाने में यह बात आज भी वह महत्वपूर्ण है और लागू करती है। To give the gospel without making people feel that you're confronting them, threatening them. और आज के समाज में भी यह बहुत जरूरी है कि हम सुसमाचार ऐसे फैलाएं कि लोग दिल से और खुशी से उसका स्वीकार करें, ना ही उनको डराएं। We also see something happening with the way mission works. और हम देखते हैं कि किस तरह से यह प्रचार का कार्य शुरू हुआ, किस तरह से यह फैलाया गया। This Bible woman, they start to go and they read the Bible and share about the gospel.
यह जो स्त्री प्रचारिका होती है वो घर घर जाती है, पवित्र शास्त्र पढ़ती है, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते हैं। But after a while that is happening and they start to do something else too. और इसके बाद उनके जीवन की चर्या में और भी बहुत सारे काम होते हैं और भी बहुत काम करते हैं। What are they doing, these और women? और क्या करते हैं ये औरतें? They start to care for the sick. और उन्होंने सिर्फ प्रचार में अपने आप को सीमित नहीं रखते हैं, वो जो बीमार है उनका ख्याल रखना शुरू करते हैं। They start to care for the children's education. उनके बच्चों की पढ़ाई में वो उनका योगदान है। And the gospel goes from just, not just, but being proclamation of word to become holistic, हाँ, where the whole life is part. और हम देखते हैं कि यह जो उनका प्रचार का जो कार्य है वो सिर्फ शब्द बांटने में तक नहीं रहता, लेकिन उसमें कार्य भी होता है। ऐसा हम देखते हैं स्त्रियों के बारे में। When I meet projects that work with development and that kind of things, और जब मैं ऐसे योजनाओं में काम करता हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ जहाँ जो प्रगतिशील होते हैं, समाज की प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं, I always try to encourage the women to take part in that. और ऐसे समय इन योजनाओं में हमेशा मैं चाहता हूँ कि हमेशा स्त्री पहला कदम आगे बढ़ाए And having a strong influence. और उनका जो प्रभाव है वो समाज पर ज्यादा पड़े। Because what I see all over the world is that when women are part of that, they start to care for the children, care for the family. And when they start to get some money in to the family, they are using that for education, for food, for good things. और मैं जब देखता हूँ कि ये योजनाएं जो प्रोजेक्ट्स में है, जब मैं स्त्रियों को काम पर लगाता हूँ तो ये जो उनको सैलरी मिलती है वो अपने परिवार के लिए वो इस्तेमाल करती है, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए। Of course, women sometimes want some jewelry. हाँ, मैं जानता हूँ कि स्त्रियों को कभी-कभी कुछ गहने लगते हैं। But we men, we think more about buying a new cell phone or a new motorbike, a new car. उनको गहने पसंद है, लेकिन हम सोचते हैं कि उन्होंने सेल फोन या कार वगैरह खरीदना चाहिए। Not in Pimpri, but on some other places they think like that. लेकिन कोई मे बी सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। I think that transformation where the gospel become more holistic, that the women have had a key in that. मैं सोचता हूँ कि जब स्त्रियां प्रचार करती हैं तो वो प्रचार का कार्य जो है पूरा संपूर्ण हो जाता है। एक सिर्फ शब्द बांटना नहीं रहता, उसके साथ सभी कार्य जुड़ जाते हैं और वो पूर्णता का रूप ले लेता है। St. Luke Medical Society, do you all know what that is? सेंट लूक मेडिकल सोसाइटी के बारे में क्या आप सब लोग जानते हैं? The medical work that came out of HCC work or the missions work. हमारे एचसीसी चर्च की यह एक योजना है जहां एक अस्पताल है, वहां रोगियों की सेवा की जाती है। It was started by one Swedish lady called Maj Fransén. फ्रांसीन, माय फ्रांसीन नाम की स्त्री के द्वारा यह सेंट लूक हॉस्पिटल जो है मेडिकल फ्रेटर्निटी, ये शुरू किया गया था हिंदुस्तान में, सोलापुर में। ओके, सोलापुर में, हिंदुस्तान में सोलापुर में। She was the one that went to Solapur first. और वह थी जो पहली बार सोलापुर में गई And she started to go around with some evangelists to the different villages. और वह गांव-गांव में जाकर परमेश्वर का नाम का प्रचार करने लगी। That time there were no evangelists or no healthcare at all. और वहां उस समय कोई परमेश्वर का वचन लेकर नहीं जा रहा था। And she started to build up this work and she was a really stubborn lady. और वह बहुत जिद्दी स्त्री थी और यह कार्य उन्होंने वहां शुरू किया। If you haven't heard the story about her, ask someone of the old HCC people to tell you. अगर आप इसके बारे में, स्त्री के बारे में नहीं जानते तो आप एचसीसी के चर्च के लोगों से प्लीज पूछकर उसके बारे में जानकारी लें। So this was in the beginning of the 50s. 1950s। Yes, ओके, 1950s. 1950 की शुरुआत में यह आई थी भारत में और उसने यह कार्य शुरू किया। 1965 there came another woman missionary. और मैं जब 1965 में आया तो मैंने एक दूसरी स्त्री को देखा जो यह मिशनरी का काम कर रही थी। Alvik Jansson. अलविज्ञान। Yes.
अलविज्ञान से उसका नाम था। She started to, with some other program, to give vaccination and other things. और उसने बच्चों को वैक्सीनेशन देने का कार्य शुरू किया, छोटे बच्चों को, उसके बीच में वो कार्य करने लगी। By that time, she had got a jeep, अच्छा, उसके बाद उसने एक जीप खरीदी and she traveled around with this jeep with another nurse and some evangelists. और वह क्या करती थी, वो जीप में बैठकर कुछ नर्सों को लेती थी, कुछ प्रचारिकाओं को जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे उनको लेती थी और एक गांव से दूसरे गांव उस जीप में जाती। And they did a very important work when it comes to sicknesses that children get, और measles and other things. और बच्चों की बीमारी जैसे मीजल्स है, गोवर है, इस सभी कार्यों में उसका बहुत बड़ा योगदान है। Then it goes to some years to, in 1977, it comes another Swedish missionary, और 1977 में और एक मिशनरी स्त्री आई स्वीडन से। and a woman, her name was? and she is a woman, वो यह भी स्त्री ही है, and Stina Fröberg. एस्टीना Fröberg. फ्रूबेरी, वेरी डिफिकल्ट नेम्स। Yes, and she is the one that's formally started the Nannich hospital. ओके, उन्होंने नानच का हॉस्पिटल शुरू किया। 3 women, देखो, 3 स्त्रियां, they started a healthcare. और उन्होंने ये जो आरोग्य का क्षेत्र है, ओके, हेल्थ का क्षेत्र है, इसमें काम करना शुरू किया। Little bit interesting that you didn't know so much about this. और ये मुझे दिलचस्प बात लगती कि आप लोगों को यह बात नहीं मालूम थी। Maybe some of you knew, शायद आपके बीच में कुछ लोग जानते होंगे but इनके I बारे में। think it's quite typical. और लेकिन मैं ये जानता हूँ ये बहुत ही ना साधारण व्यवहार है, नजरिया है देखने का लोगों का। The woman by the well, we don't know the name. There is a name in church history given to her, but and the Orthodox Church has a name on her. यह बहुत साधारण नजरिया है समाज का, और स्त्री का योगदान किसी को याद नहीं रहता। इस सामरी स्त्री का भी नाम हमको मालूम नहीं, सिर्फ हम जानते हैं सामरी स्त्री है। But the women seldom become the ones that you put on the wall and say, these are the big heroes. और कभी हमने देखा नहीं, ज्यादातर हम देखते नहीं, बहुत कम बार हम देखते हैं कि औरतों का चित्र लगाया गया है कि वो बहुत बड़ी है और उसकी इज्जत की गई है, उसकी अर्चना की गई है, उसकी आराधना की, उनको मान दिया गया है। One of the former principal and church historian of our theological school in Sweden, he has the last 10 years been looking at women during the revival history. और हमारा जो चर्च गॉस्पेल कॉलेज है स्वीडन में, वो स्त्रियों के रिवाइवल हिस्ट्री के बारे में वो अध्ययन कर रहे हैं। And yesterday they published a small interview with him. और कल उनका एक इंटरव्यू उन्होंने जो था वो रिलीज किया, पब्लिश किया। And probably there will come some kind of book about, About yeah, women. yes, ओके, और मे भी आने वाले दिनों में वो किताब पब्लिश होगी और हम पढ़ेंगे इन स्त्रियों के बारे में। But he says in that, you know, I have been a church historian. I've lived in this church denomination for my whole life. उनका कहना है कि मैं चर्च के इतिहास के बारे में बहुत जानता हूँ और मेरा पूरा जीवन चर्चेस के इतिहास पढ़ने में गया है। And I've been teaching pastors church history. और मैं चर्चेस को, पास्टर को, जो चर्च की कलीसिया की जो इतिहास है इसके बारे में पढ़ाया करता हूँ। But it's not before I start to dig a little bit deeper, I suddenly see all this women that has had such an impact on our church. और जब मैं ये चर्चेस का इतिहास पढ़ने, कलीसियों का इतिहास पढ़ने लगा, तब मुझे पता चला कि स्त्रियों का इसमें तो बहुत बड़ा योगदान है। We know that is, but general history that's true too. और हमको मालूम है कि हम ऐसे अपने साधारण जो इतिहास पढ़ते हैं, अपने देश का भी अगर इतिहास पढ़े तो स्त्रियों का हर बात में योगदान बड़ा होता है। There's a lot of written about the men, और पुरुषों के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है, जाता है, but not so much about the women. लेकिन स्त्रियों के बारे में ज्यादा लिखा नहीं जाता। And I think more and more historians and like him in the churches start to realize that is not a true picture. और मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे यह जो चर्च है, कलीसिया है, जो स्त्रियों का योगदान है, इसे पहचाने। I don't know that all the reasons for
that it is that, but I think one big reason is that we men are quite concerned about that we really get credit for what we do. और मैं यह जानता हूँ कि और ये सोचने वाली बात भी है कि अक्सर पुरुषों को श्रेय दिया जाता है कलीसिया हो या समाज में हो योगदान देने के लिए। So please tell me afterwards this was a good preaching. तो मुझे ना स्त्रियों प्लीज जो बहनें यहाँ बैठी हैं मुझे बताइए कि ये जो आज का प्रवचन था आपके हक में था, आप I'm- खुश हैं? I'm joking. But I think it is true. और मैं जानता हूँ कि यह सच्चाई है। Women are more concerned about that there are really happening something. और स्त्रियों को सचमुच यह चिंता होती है कि सचमुच कार्य होना चाहिए। That there are food on the table in the family. और यह शास्त्र की बात नहीं, यह भी देखती है, वो हमेशा एक स्त्री देखती है कि घर की मेज पर खाना परोसा गया है। That there are education for the children. घर पर मेज पर खाना परोसा गया है, उसके बच्चों का अच्छी तरह से देखभाल हो रही है, पढ़ाई लिखाई हो रही है। Whereas we men like to have monuments. और जब हम पुरुष के बारे में देखते हैं, हम सिर्फ अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहते हैं। And we spend our money there. हम्म। और हम अपना पैसा वहां खर्च करते हैं। When they, in this interview with the church historian, the lady that interviewed her, asking her in the end, so what difference do you think it had made if women had had a bigger influence on decision making? Because that is what we men have done. We have tried to push the women away from decision making. और जब यह वार्तालाप हुआ, ये बुक जो पब्लिश करने वाले हैं आने वाले दिनों में, उस स्त्री ने इस लेखक से पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आता था अगर औरतों को आगे आने का मौका मिलता, अगर उनको दबाया नहीं जाता, Or at least keep them out of decision making. और अगर उनको निर्णय लेने का जो श्रेय यूजुअली हम देखते सर्वसाधारण पुरुष निर्णय लेते हैं, अगर उनको निर्णय लेने दिया गया होता तो। You know that Uniting Church in Sweden is 3 denominations that became 1 denomination. अच्छा, जो यूनाइटेड चर्च स्वीडन का, यह 3 हिस्सों में है, उन 3 हिस्सों को एक कर कर बनाया गया हुआ है। That is about 13 years ago or so. और यह हमने 13 साल पहले किया था। And he answered, the church historian answered, I think we had come together much, much earlier and worked together if the women had been in power. उनका कहना था कि हम एक साथ बहुत साल पहले आ जाते, अगर औरतों को ना हमने बोलने का मौका दिया होता या औरतों को आगे लाने का मौका दिया होता, तो ये जो 13 साल पहले आए, उससे पहले हम एक साथ आ सकते और यूनाइटेड चर्च ऑफ स्वीडन बनता। Because he says, when I study these women, जब उन्होंने कहा कि जब मैंने स्त्रियों के बारे में पढ़ना शुरू किया, it seems like they are not so much concerned about if that person is this kind or this kind. They want to see something happening and they want to work together to और achieve मैंने that. देखा कि स्त्रियों का जो देखने का नजरिया जब वो काम करती है उनका अलग है। वह आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके पूर्व इतिहास के बारे में देखती नहीं है, वो सब बस लोगों के पास जाती है और उनको एक साथ लाने की कोशिश करती है। We in the church need the women. और जो पुरुष है, जो कलीसिया में पुरुष है, वो उनको स्त्री की जरूरत है, महिलाओं की जरूरत है। We need a new generation of Bible women. हमें नई जनरेशन ओके नए जमाने की स्त्री प्रचारिका की जरूरत है, जो परमेश्वर का वचन का प्रचार करें, That can chat with others and in a non-confronting way say, come and see. और जो बहुत ही आपसे दोस्ताना तरीके से लोगों तक पहुंचे और कहें, आओ मैं आपको मसीहा के बारे में बताऊं, May he be Messiah. आइए मैं आपको मसीहा से मिलाती हूँ, May he be the Savior. और शायद यही हमारा उद्धार करता हो। He knew he had told everything about me. उसने उस स्त्री का कहना था, देखो उसने तो मेरे बारे में तो सब कुछ बता दिया। But not only, we don't need only Bible women. We need women that has an influence on how we are church.
और हमें सिर्फ बाइबल वुमेन की ही जरूरत नहीं है, स्त्रियों की ही जरूरत नहीं जो प्रचार करे। हमें यह दर्शाना है कि स्त्रियों के द्वारा कि किस तरह की कलीसिया हम हैं, to help us be a healthy church. और हम ताकि हम दिखा सके कि हम बहुत ही हेल्दी चर्च हैं, सुदृढ़ चर्च हैं। Not a church that is too much concerned about prestige. और वह नहीं कि हमें सिर्फ अपने स्टेटस या ओहदे के बारे में ही ख्याल है, हम खुले मन के हैं। A church that is concerned for whole life. और वह कलीसिया जो जीवन के बारे में, जीवन के स्रोत के बारे में सोचती है। A church where it's as natural to speak the word of God as giving help. और इतना असाधारण हो, ऐसी कलीसिया बने जहाँ परमेश्वर का वचन बहुत साधारण तरीके से हम लोग एक दूसरों को बता सकें और उनकी मदद कर सकें। We need women. हमें महिलाओं की जरूरत है। And I hope you will continue और मुझे आशा है कि आप यह कार्य आगे बढ़ाएंगी। to not just lead the church in worship once a year. मैं आशा करता हूं कि साल में एक बार मौका नहीं मिले आपको, ताकि आप सिर्फ प्रेज एंड वर्शिप करें और चर्च को लीड करें, और भी आप मौके मिले और आप आगे आएं। Excuse me, I actually don't know how it is the other Sundays. अब मुझे माफ कीजिए, मुझे मालूम नहीं यहाँ के रिवाज क्या हैं, But I know in many churches it's like that. लेकिन मैं अब जानता हूँ कि काफी चर्चेस में ऐसा होता है। Let me just come back to one thing before we end here. समाप्त करने से पहले और एक बात आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। In this story, we meet that woman that has been so total failure. और हम इस कहानी में ऐसी औरत से मिलते हैं, वो अपने जीवन में बहुत अपयशी थी। I will not ask here if one of you have had 5 men or 5 women. मैं आपसे नहीं जानना चाहता कि आप में से किसी के कितने पति थे या पुरुष थे, But I think that this woman, she was quite extreme. और मैं सोचता हूँ कि यह जो स्त्री ने किया, ये तो आपे के बाहर ही था। But still, लेकिन फिर भी we know that we fail. हम फिर भी जानते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे कुछ छोटे भी पहलू हो गए, इससे भी छोटे स्त्री से भी, कि जहां हम अपने जीवन में अपने आप को अपयशी समझते हैं, And that we sometimes feel a bit ashamed और हमें अपने आप की शर्म आती है, हम अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं, for who we are or for what we are not. और हम कभी कभी अपने आप को छोटा महसूस करते हैं कि हम कौन है या हम वैसे क्यों नहीं हैं And, दूसरों के जैसे, and we feel guilt. और उसकी वजह से हमारे मन पर बोझ बना रहता है। We are in Lent season at the moment. हम लेंट के समय में है, उपवास के दिनों में है आजकल, 40 days of renewal. और वहां लिखा है कि 40 दिनों का बदलाव। This is a good time to reflect about yourself. और लेकिन आप जैसी भी हो, यह समय है कि आप अपने बारे में सोचें। We are preparing up till Easter हमारे पास ईस्टर तक का समय है, to receive the message of Easter. और हमारे पास ईस्टर तक का समय है, तब के जब हम ईस्टर का पुनरुत्थान का समाचार सुनेंगे। One of the most amazing thing with this meeting with the lady here एक बहुत ही अद्भुत बात है जब यीशु इस स्त्री से यहाँ मिले, at least for me, मेरे लिए, is the change that happens in her. वो बदलाव जो उस स्त्री में आता है। She goes from trying to hiding who she is and trying to avoid people around her. और वह बदलाव यह है कि वो एक स्तर से, जहां वो एक तरह का जीवन जीती थी, लोगों को मुंह नहीं दिखाती थी, उनसे छिपाती थी, And being told by Jesus, you have had 4 men और यीशु मसीह or के 5 men. द्वारा उसे बताना कि तुम्हें तुम्हारे भूतकाल में तुम्हारे 4 पति रहा के हुआ करते थे, 5 पति हुआ करते थे, And from that, she goes into the city and starts to witness. और उसमें ऐसा रूपांतर, ऐसा बदलाव आता है, उतना उसका धाड़स बंध जाता है कि वो पूरे खुलेपन से जाकर शहर में यीशु के बारे में बताती है। I think the Lent season can be a time when
it happens things in our hearts. और यह जो 40 दिनों की प्रार्थना है, यह वह दिन हो सकते हैं कि उस तरीक में जो बदलाव आया, परिवर्तन, वो हम में और आप में भी आए। But let us then listen to Jesus. लेकिन उसके लिए हमें यीशु को सुनना पड़ेगा। Even when he speaks words to us that is not so nice to hear. और हमें यीशु से का सुनना पड़ेगा जब वो हमसे ऐसी बातें करते हैं जो हम सुनना नहीं चाहते अपने बारे में। He probably will not say, you have had 4 or 5 men. Or शायद शायद women. वो आपसे यह नहीं कहें कि आपके 4 या 5 पति हो, But we need to be letting Jesus speak to us. लेकिन हमने कोशिश करना चाहिए कि यीशु हमसे बात करें। Because what we see here is when that happened, she is changed. और हमने अभी देखा कि जब यीशु हमसे बात करते हैं तो हम में परिवर्तन आता है, हम में बदलाव आता है। She meet the love of Jesus. हमें यीशु का प्यार प्यार की जरूरत है। A kind of acceptance, not that she had done right things, but that she is someone that is important for him. और यह जो वाक्य से हम यह समझते हैं कि उसे एक महत्व दिया जाता है, उसे कबूल किया जाता है सामने से। So let the Lent season be a time of honesty. और आइए यह 40 दिनों की प्रार्थना में हम अपने मन को सच्चाई से यीशु के सामने खोल कर रख दें। We Christians sometimes are a bit strange, at least me. हम जो क्रिस्ती लोग हैं थोड़े ही अद्भुत होते हैं, अलग होते हैं, खासकर मैं। I don't I don't want to confess my things in front of Jesus. I don't want to listen to when I fail. हम अपने पापों का अंगीकार न करना पसंद नहीं करते। Don't Jesus know? क्या यीशु को मालूम नहीं मैंने क्या-क्या किया है? ही नोज़ एवरीथिंग। Of course he knows. हम सोचते हैं उसे तो सब मालूम है मेरा कच्चा चिट्ठा। But when we confess, then he is faithful and he forgive our sins, it says in 1 John. लेकिन जब हम पापों की कबूली करते हैं तो वो पूरे विश्वास के साथ हमें क्षमा करता है In order that we should be healed, और हमें हमारी चंगाई बख्श करता है। we need to confess to him. और उसके लिए ज़रूरी है, हमारे ज़ख्मों को भरना है तो ज़रूरी है कि हम अपने पापों की कबूली करें। And let us, when we witness about him, not being trying to look perfect. और जब हम उसका दर्शन पाए तो अपने पास सीमित न रखें और अपने आप को उत्तम न समझें। Sometimes we think if we make the nicest church building, if we have the nicest thing, and everything is very, very nice, then people will start to believe in Jesus. हमको कभी-कभी लगता है अच्छी इमारत, चर्च की अच्छी इमारत हो, अच्छे सदस्य हो, ओके अच्छी सब साज सामान की ज़रूरतें हो यहाँ कलीसिया में, तो वह लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये क्रिस्ती लोग हैं, अच्छे लोग हैं। When I'm like a saint with a glory on my head, सिर्फ तभी नहीं कि जब मेरा सर ढका हो। आई डोंट लाइक दैट बट एक्चुअली लेट मी कन्फेस। then we think, तो उनको लगता है हमारा सर वगैरह ढका है, हम बहुत पवित्र है, हम बहुत होली है। but here we have the worst sinner maybe in the city. हमारे पास शायद उस हम देखते हैं इस कहानी में उस जमाने की सबसे बड़ी पापी स्त्री होगी ये। Saying, he told everything about me. और उसका कहना अरे वाह इसने तो सब कुछ मेरे बारे में बता दिया। And the fantastic things happen. और यह कितने अद्भुत तरीका से ये वाकया हुआ। They go to Jesus. They come to Jesus. तो हमें यीशु मसीह के पास जाना है And Jesus meet them. और यीशु मसीह उससे मिलते हैं। I think when we are honest about ourselves, people will see Jesus. जब हम अपने आप से सच्चाई से रहें तभी हमें यीशु मिलेगा। I will tell you a little bit, a small secret at this last thing here. मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ, छोटा सा रहस्य। It's not only you who sometimes feel a failure. यह सिर्फ आप नहीं है जिसको लगता है कि मैं अपने जीवन में नाकामयाब हुई हूँ या अपयशी हुई हूँ। Maybe the person that sits next to you. शायद आपके पास में भी जो बैठा है उसे भी शायद वैसा ही महसूस होता होगा कि अरे मैं भी शायद अपने जीवन में यशस्वी नहीं रह पाई। And even the people outside.
या आप चर्च से बाहर जाए, आपके समाज में, आपके पड़ोस में लोग स्त्रियों से बने, शायद वो भी अपने बारे में सोचती होगी कि हाँ, मैं अपने जीवन में नाकामयाब रही। They need the love of Jesus. ये सभी लोग परमेश्वर यीशु मसीह के प्यार के भूखे हैं। इन सभी को यीशु का प्यार की ज़रूरत है। Amen. आमीन।